Hello everyone, welcome to your favorite channel Physics Way. Let's start our discussion and solve the paper of CUCT 2020. ओके देखो, जैसे कि तुम लोग को पता है कि CUCT पेपर में दो पार्ट आता है ना। पार्ट ए में कुछ जनरल क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह। तो ये हम पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट ए में तुम लोग के लिए 25 क्वेश्चन रहता है, तो 26 से स्टार्ट होता है तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 फॉर वेक्टर्स ए बी एंड सी द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, सो देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है ना कि बी ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी। This is generally known as Beck minus Cave rule. Okay, so calculate both these terms. B vector 2i cap plus 3j cap minus 5k cap A dot C, A vector dot C 1 minus 1 minus C vector A dot B, A dot B 3 minus 5। देखो 1 minus 1 0 है, 0 product with this vector 0 minus c vector minus 2 equal to 2c. So a cross b cross c is in the same direction of c, so correct option is c. देखो इस बार तो ये क्वेश्चन आ गया ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी के टाइप और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो जैसे कि इस बार पूछा है a क्रॉस b क्रॉस c, सो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि कैलकुलेट a क्रॉस b क्रॉस c। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस। देखो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो अगर हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए ना, तो फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। जैसे कि देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, एज वी नो क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट satisfy commutative rule. So now this term is equivalent to this, so we can write here b a dot c minus c a dot b. So minus a dot c dot b minus b c dot a. So it is equal to b c dot a minus a c dot b. So now from here you can calculate a cross b cross c with this formula. Okay, देखो ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर हो गया। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो देखो जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज a डॉट b क्रॉस c एंड it is calculated by using the determinant formula, and that is ax ay az, bx by bz, cx cy cz. So remember all three formulas. And what we know, for three coplanar vectors a, b and c, the scalar triple product is 0. A dot b cross c equal to 0 for coplanar vectors. Okay, next question number 27. The value of partial differential del square f by del y del z of the function f. देखो ये फंक्शन गिवन है हमें और इसका पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। जैसे कि डेल स्क्वायर एफ डेल वाई बाई डेल जेड, दिस कैन बी रिटन एज डेल वाई ऑफ del f by del z. So first calculate partial difference of f with respect to z and then partial differential of this del f by del z with respect to y. So del by del y, so minus 6 x square y plus 16x y cube z minus 10 y z to the power 4. So next calculate partial differential with respect to y. So minus 6x square plus 48x y square z
minus 10z to the power 4. So your right option is option D. Next, question number 28. Given that f of 3 equal to 6, f dash 3 equal to 8, and f double dash 3 equal to 11, and other higher order derivatives of f of x in Taylor's theorem are 0 at x equal to 3, and assuming the function and all its derivatives exist and are continuous between x equal to 3 and x equal to 7, then the value of function at x equal to 7 is equal. देखो जैसे कि हमें पता है फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेलर सीरीज एक्सपांशन अबाउट एनी पॉइंट एज गिवन एज लेट एट पॉइंट अबाउट ए expansion will be f of a plus x minus a f dash a plus x minus a square by 2 factorial f double dash a plus dot 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 higher order terms. Now using the given values we can expand a function f of x about point 3. F of x about point 3 x equal to 3 will be f of 3 plus x minus 3 f dash 3 plus x minus 3 whole square by 2 factorial f double dash 3. देखो for the given question other higher order terms are 0, so write for this term only. देखो इसको सॉल्व कर लो जैसे कि f of 3 6 plus x minus 3 8 plus x minus 3 whole square by 2 and it's 11. Now we have to find value of this function at point x equal to 7 at x equal to 7. So f of 7 equal to 6 plus 7 minus 3 into 8 plus 7 minus 3 whole square by 2 into 11. So it is 6 plus 7 minus 3 4 into 8 ja 32 plus 7 minus 3 whole square 4 square by 2 8 into 11 88. So add them, it is 126. So your correct option is option C. Next, question number 29. Which of the following complex numbers is equivalent to 3 minus 5i by 8 plus 5 to this complex number? Okay. तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्विवेलेंट नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, बस इसे रेशियो एनालाइज कर दो. तो कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई. जैसे कि 3 माइनस 5i 8 प्लस 2i, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 8 minus 2i 8 minus 2i. Now solve this. देखो 3 into 8 24 minus 6i minus 40i minus minus plus 5 10 I square minus 1. So minus 10 by a square minus b square formula minus 2i square. So it is equal to 14 minus 46i 8 square is 64 plus 4. Okay, so 14 minus 46i by 68. So common ले लो 7 minus 23i by 34. So your correct option is option C. Next, question number 30. The value of gradient of t equal to x square y plus exponential z at point P152 is equal to. देखो जैसे कि ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है नहीं कि, और हमें क्या पता है कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन गिव्स अस ए वेक्टर क्वांटिटी. सो राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट. आई कैफ डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल वाई डेल वाई प्लस के कैफ डेल वाई डेल जेड ऑफ टी.
So put the value of t and do the differentiation. I gave it will be 2xy plus x square j plus exponential z k cap. Now we have to find this gradient at point P152. So grad t equal to xy xy. So 5 into 2 is 10 I cap plus x square j cap plus एक्सपोनेंशियल 2 के कैप. तो देखो सिर्फ ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है और तुम यहाँ e⁻² की वैल्यू भी यूज कर सकते हो. ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी. देखो जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यूज करेंगे ना तो आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 है 2.718, एक्सपोनेंशियल 2 7.389 एंड एक्सपोनेंशियल -2 इज 0.135. सो देखो बस हम आई कैप और जे कैप को मैच करके ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं ऑप्शन बी. अगर नहीं तो देखो पूरा ऑप्शन बी को मैच करेंगे ना तो देखो ये कैसे आएगा, जो भी e⁻² होगा तो भी जाके ये 0.135 आएगा. तो भी देख रहे हो ना आंसर मतलब पूरा चेंज हो जाएगा. अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए e⁻z और -z होगा तो देखो ये डेरिवेटिव से एक माइनस साइन आ जाएगा. तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ऐसे आएगा. देखो कि ग्राड टी इक्वल टू 10 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस e⁻² के कैफ और दैट विल बी इक्वल टू 10 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस 0.135 के कैफ. तभी जाएगा ये आंसर मैच करेगा. तो मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ e⁻z लेना पड़ेगा, फिर ये डेरिवेटिव से एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो भी मतलब आंसर मैच करने के लिए. नहीं तो नहीं फिर ये 10⁻i प्लस जे कैफ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. The letters x and y represent rectangular coordinates. The conversion of equation x square plus y square minus 4x equal to 0 in polar coordinates r theta will. देखो जैसे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, हमें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है. और देखो हमें क्या पता है कि इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा एंड x square plus y square equal to r square. Okay, so use all these value. So x square plus y square, r square minus 4x, r cos theta equal to 0 और r square equal to 4r cos theta, r equal to 4 cos theta. So your correct option is ऑप्शन बी. लेकिन देखो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ दो सॉल्यूशन पॉसिबल है. ठीक है ना. जैसे कि देखो क्या लिख रहे हैं हम, आर स्क्वायर माइनस 4r cos थीटा इक्वल टू 0. देखो इसको क्या करते हैं हम, r कॉमन ले लो, r माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0. सो देखो टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. वन इज r इक्वल टू 0 और another is r minus 4 cos theta equal to 0 or from this r equal to 4 cos theta. Next question number 32. The aerial velocity of the planet in a central force field. देखो एरियल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि the area covered by radial line connecting sun to planet per unit time and mathematically aerial velocity equal to देखो L by 2m. L is the angular momentum and m is the mass of the. देखो सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमें क्या क्या पता है कि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, जैसे कि सेंट्रल फोर्स मोशन एग्जांपल क्या है, क्या क्या है सेंट्रल फोर्स की. फॉर एग्जांपल वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, another you can take coulombic force, spring force, all are central. ये याद रखना कि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम
about the center of motion H remains conserved. Okay, and torque, which is defined as time derivative of angular momentum, that is 0 about the center of motion. So in central force motion, total energy constant, angular momentum constant, torque about the center of motion is 0. देखो जैसे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास एरियल वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम बाय 2 इंटू मास. तो एरियल वेलोसिटी भी क्या होगा कि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन एरियल वेलोसिटी एच कांस्टेंट. So your correct option is option B. Next, question number 33. Consider an object with a velocity v in a frame of reference which rotates with a constant angular velocity omega. The Coriolis force experienced by the object is. देखो कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट किस में आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. और नॉन इनर्शियल फ्रेम हमें किससे कहते हैं, जैसे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक तो रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नहीं तो एसिलरेटेड फ्रेम. एसिलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये याद रखना, ठीक है. सो कोरियोलिस फोर्स, तो रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बेसिकली ये कोरियोलिस फोर्स आता है. और कोरियोलिस फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वल टू 2m v क्रॉस ओमेगा. v is the velocity of the object, omega is the angular velocity of the rotating frame. सो देखो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एंड वी नो फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट. देखो जैसे कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, v क्रॉस ओमेगा. दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज perpendicular to velocity of the object and also perpendicular to direction of the angular velocity. So perpendicular to both v and omega. So your correct option is option C. Next, question number 34. Two particles of equal mass move towards each other with velocities 2v and v respectively. The magnitude of the velocity of center of. देखो two equal mass particles are given and their velocities are given. So we have to find the velocity of center of mass, and we know velocity of center of mass equal to m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2. So mass are same. So देखो m2v plus m minus v by m plus m is 2m. So it will be m by 2m, 2v minus v. So v by 2. So your correct option is option C. Next, question number 35. The mass per unit length of a rod of 2 meter length varies as rho equal to 3x. The moment of inertia in kg meter square of the rod about a perpendicular axis passing through the tip of the rod. देखो मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है, और क्या पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टिप ऑफ द रॉड. देखो अगर ये यूनिफॉर्म केस होता ना कि ए रॉड इज पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर बाय 3. m मीन्स मास ऑफ द रॉड, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड. और हमें क्या पता है यूनिफॉर्म केस के लिए कि इफ ए रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, then the moment of inertia about that axis will be ml square by 12. Uniform case means mass of the rod is uniformly distributed throughout its. बट देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म केस है, तो हम ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करके उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. एंड फॉर दैट फॉर्मूला इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर डी एम. जैसे कि देखो ये हमारा रॉड है, दिस इज रॉड,
and the axis is passing through its t and it is x equal to 0 point and this is our x equal to 2. तो देखो r परपेंडिकुलर क्या है ना, जैसे कि हम यहाँ एक एलिमेंटरी मास ले रहे हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंटरी मास dm from the axis. Okay, this is the r perpendicular. So as it is a linear object, let consider it to be x. Okay, so देखो जैसे कि मास डेंसिटी गिवन है इक्वल टू dm by dx और dm will be rho dx. Okay, so let this be x. Okay, so x square in place of dm it is rho dx and rho equal to 3x, so 3x square into x dx. और अच्छा लिमिट क्या हो जाएगा अभी देखो 0 to 2 तक, तो लिमिट इज 0 to 2, सो 3 ये देखो x क्यूब है तो क्या हो जाएगा x to the power 4 by 4, 0 to 2 3 by 4 into 2 to the power 4 minus 0 और 3 by 4 into 16, so it is 12 kg meter square. Okay, so your correct option is C. Next question number 36. A thin lens of refractive index 1.5 is kept inside a liquid of refractive index 4/3. If the focal length of the lens in air is 10 cm, then the focal length inside the liquid will be. देखो क्या गिवन है कि refractive index of the glass of the lens with respect to air it is 1.5. refractive index of the liquid विथ रिस्पेक्ट टू एयर इट इज 4/3. अच्छा देखो यहाँ एल और जी पे कंफ्यूज नहीं होना, देख लो कि ये ग्लास ऑफ द लेंस दैट मीन्स इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. और क्या गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर. देखो फ्रॉम लेंस मेथड फॉर्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2. देखो एयर पे फोकल लेंथ गिवन है, हमें लिक्विड में कैलकुलेट करना है. देखो ये जो फॉर्मूला में यहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन एयर मीडियम n इज रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द लेंस विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम. जैसे कि देखो हमें लिक्विड मीडियम में कैलकुलेट करना है, ठीक है, लिक्विड मीडियम में कैलकुलेट करना है, तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला में वहाँ n क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड मीडियम. ओके, तो देखो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दैट कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म 1/n-1. तो फोकल लेंथ इन एयर 1/n Ga-1 and focal length in liquid it is 1/n-1. So f of a divided by fl equal to gl-1/n Ga-1. देखो f of focal length in air medium given, so focal length in liquid medium we have to calculate. देखो और क्या गिवन है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस एट इन एयर मीडियम. देखो ये हमें पता नहीं, ये कैलकुलेट करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस इन लिक्विड मीडियम एंड इट इज डिफाइंड एज NGA. That means glass refractive index of the glass of the lens in air medium to the refractive index of the liquid in air medium. तो देखो जैसे कि 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 और ये 4/3 नहीं, सो इट इज इक्वल टू 9/8. नाउ पुट द वैल्यू, सो f of L इक्वल टू NGA minus f of a by NGL minus 1. So 3/2
-1/9/8 -1 इंटू 10। बस ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 37. Three sinusoidal waves have the same frequency with amplitude a by 2 and a by 3, while their initial phase angles are 0, pi by 2 and pi respectively. The amplitude of the resultant wave will be, देखो, three waves are given with amplitude a by 2 and a by 3, and also phase angles are given. So look at here, y2 can be written as sin 90 plus phi, that will be equal to a by 2 sin 90 plus phi cos phi. Similarly, sin pi plus phi will be minus a by 3 sin phi. Now for the resultant amplitude, y will be equal to y1 plus y2 plus y3, or a sin phi plus half cos phi minus 1 by 3 sin phi. Now a sin phi minus 1 by 3 sin phi, that will be 2 by 3 sin phi plus half cos phi, or 2a by 3 sin phi plus a by 2 cos phi. Now look at here, these terms are 90 degree to each other, so the resultant amplitude will be 2a by 3 whole square plus a by 2 whole square, और इट विल बी इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर बहुत तरह में है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर 4/9 प्लस 1/4, और ए 36 16 प्लस 9, और इट विल बी 5a/6. So your correct option is option C, 5a/6. Next, question number 38. A lightly damped harmonic oscillator with natural frequency omega naught is driven by a periodic force of frequency omega. The amplitude of oscillation is maximum when. देखो, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया ना कि फोर्स्ड ऑसिलेशन से। देखो, ये याद रखना है कि द मैक्सिमम amplitude results when the frequency of the driving force equals to the natural frequency of the system. Natural frequency of the system. So for maximum amplitude, in this given question, for maximum amplitude omega should equal to omega naught. So your correct option is option B. Next, question number 39. A train passes through a station with a constant speed. A stationary observer at the station platform measures the tone of the train whistle as 484 Hz when it approaches the station and 442 Hz when it leaves the station. If sound velocity in air is 330 meter per second, then the tone of the whistle and the speed of the train are respectively. देखो, ये गिवन है ना कि apparent frequency और observed frequency by the observer. When train approaches the station, it is 484, and when train leaves the station, it is 442. देखो, ये A और L for approaching and for leave the station. Okay. Now V 330 meter per second is the velocity of medium.
ओके देखो ये क्वेश्चन बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। और देखो डॉपलर इफेक्ट से हमें क्या पता है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस वी डी बाई वी माइनस वी एस। देखो ये जो सिम्बल्स क्या क्या है, एफ डैश क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर, एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसिल टोन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम एंड वी डी एंड वी एस क्या है ना, वी डी इज द वेलोसिटी ऑफ द डिटेक्टर और ऑब्जर्वर, वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। देखो ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ना वो कैसे सिचुएशन लेके लिख रहे हैं वो पता रहना चाहिए, तभी जाके तुम ये फॉर्मूला यहाँ एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो ये क्या सिचुएशन है ना, यहाँ सोर्स अप्रोचिंग द डिटेक्टर और ऑब्जर्वर एंड दिस इज आवर डिटेक्टर। देखो क्या है ये फॉर्मूला के लिए कि सोर्स इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड डिटेक्टर इज अवे फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि देखो सोर्स और डिटेक्टर के डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस साइन पे चेंज आ जाएगा। जैसे कि सोर्स अवे फ्रॉम द डिटेक्टर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, वी प्लस वी एस, और डिटेक्टर अगर टुवर्ड्स द सोर्स हो जाएगा ना तो यहाँ वी प्लस वी डी हो जाएगा। तो देखो ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये जो दोनों कंडीशन गिवन है, दोनों में हमारा जो ऑब्जर्वर है स्टेशनरी है, तो व्हाट वी विल यूज कि वी डी इक्वल टू 0 फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके तो देखो जैसे कि व्हेन ट्रेन अप्रोचेस द स्टेशन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, व्हेन ट्रेन अप्रोचेस द स्टेशन एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट वी बाई वी माइनस वी एस। देखो वी डी तो 0 हो गया और ये वी माइनस वी एस क्यों रहा ना, इन दिस केस सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके सो देखो ये जो गिवन वैल्यू है सारे हम यूज कर सकते हैं, ये 1 हो गया। और व्हेन ट्रेन लीव्स द स्टेशन ऑफ एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट वी डी 0 सो वी बाई वी। देखो यहाँ क्या है, लीव्स द स्टेशन, दैट मीन्स द सोर्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो ये तो रेस्ट में है, नाउ देखो सोर्स इज अवे फ्रॉम द लिविंग द प्लेटफॉर्म और लिविंग द स्टेशन, सो इट विल बी वी प्लस वी एस, दिस सेकेंड इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट केस में सिचुएशन क्या था कि देखो ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट पे और देखो ये जो सोर्स है टुवर्ड्स द डिटेक्टर है, तो ये v माइनस वी एस, बट हेयर द सोर्स इज अवे फ्रॉम द डिटेक्टर, सो दैट विल बी v प्लस वी एस। नाउ देखो फ्रॉम वन v बाई v माइनस वी एस इक्वल टू एफ डैश बाई एफ नॉट, और देखो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इजी हो जाएगा, v माइनस वी एस बाई वी एफ नॉट बाई एफ डैश और 1 माइनस वी एस बाई वी इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ डैश। सिमिलरली फ्रॉम टू v प्लस वी एस बाई वी इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ डैश। अच्छा देखो जैसे कि ये अप्रोचिंग है, ये ए कर लो, ये लिविंग के लिए एल करना, फॉर 1 इट इज ए और ये एल, सो 1 प्लस वी एस बाई वी इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ डैश एल। नाउ add these two equations, so it will give us 2 equal to f naught 1 by f dash plus 1 by f, so from here we can calculate f naught। okay just calculate that, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो, देख लो ये आ जाएगा 462 हॉर्ज। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वी एस। देखो टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो सेकेंड इक्वेशन से रिलेशन आया था ना उसको ले लो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वी एस इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ डैश एल माइनस 1 इंटू वी। देखो एफ नॉट पता है, ये पता है और वी भी पता है। जैसे कि एफ नॉट क्या आ गया 462, इट इज 442 माइनस 1 एंड द
वैल्यू ऑफ v इज 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो ये मीटर पर सेकेंड पे गिवन है ना, और देखो जो ऑप्शन में आंसर है वो किलोमीटर पर आवर पे है, तो ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये कितना हो जाएगा, 20/442 इंटू 330 इंटू, देखो ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है, तो कितना मल्टीप्लाई करना है कि 18/5, सो किलोमीटर पर आवर। देखो हमें पता है ना कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये कन्वर्सन फैक्टर। तो ये अभी कैलकुलेट कर लो कितना, 53.74 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. A stationary wave is produced in a string of length 1.25 meters. If 3 nodes and 2 antinodes are produced in the string, then the wavelength of the wave is. देखो length of the string is 1.25 meter and it has 3 nodes and 2 antinodes. देखो ड्रॉ कर लो कि 3 nodes, okay, 3 nodes, node and antinode. What I know, keep the distance between two consecutive node is lambda by 2. This is lambda by 2 and the distance between antinode and node is lambda by 4. Okay, तो देखो this string has 3 nodes and 2 antinodes and the total length is 1.25 meter. So देखो जो total length है lambda by 2 plus lambda by 2 equal to 1.25 meter. So lambda equal to 1.25 meter. So wavelength of the wave is 1.25 meter and your correct option is option D.